Dear children, we are starting a new series in which we are going to discuss all the important questions of history, which is already asked in previous year examination. So I'm going to discuss 2 to 3 questions every day. So let's start today's class. This is the first question from the chapter number 1, and the question is: the most unique feature of Harappan civilization was the development of urban center. Explain. This question is asked in 2024 main examination, carrying 8 marks. And you can look at here, this question has certain part. The first one is, it is asking the unique feature of Harappan civilization and in respect of urban centers. That means simply this question is asking the urban planning of Harappan civilization. So how you will answer this question? It will be answered in 3 part. The first one is introduction, right? Another one is city planning and its uniqueness, and then you will conclude the answer, right? So let's check the answer. So this part is introduction, right? It is written: the development of urban center is considered a unique feature of Harappan civilization due to several aspects of their planning and structures. Now, this one is introduction, and now we are moving towards the main body of the answers, right? So you will write first one is planned city. All of you know that Harappan cities were planned. It was divided in 2 parts. That was citadel and lower town, right? Second point is standardization. That means every city had certain kind of uniformity in their planning. So for example, the bricks sizes were same in every sites. The making of bricks were almost similar. They were sun dried or baked, right? So it is suggesting that there were certain kind of centralized planning were present in the Harappan civilization, right? So in the citadel part, you can write that the citadel part was on a raised platform, right, separated from the lower town by a wall. Then citadel house structure used for special public purpose like great bath, warehouse, granary. These all the structures that was located in the citadel part, right? And what was the lower town? Lower town was the residential area for the common people, right? People house were surrounded around the courtyard. That means घर के बीच में कोर्टयार्ड होते थे और बाकी चारों तरफ रूम हुआ करते थे. एंड दे वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी. कैसे? किसी भी घर में बाहर किस तरफ विंडो नहीं थी. ठीक है. एवरी house had bathrooms and that was well connected with the drains, right? Then some larger house had multiple stories and wells. ठीक है. So you will write like this. So look at here, this is the picture, and here this one is citadel. Cities was divided in 2 parts, and this one is lower town, separated by a wall, right? This this citadel were having many big structures, right? As you can see here, जैसे ग्रेनरी हो गया या फिर पब्लिक बात हो गया. ठीक है. तो अलग अलग असेंबली हॉल हो गया. So this is the citadel part, and this one is lower town where common people were living. Okay. And almost everywhere the size of bricks were 7 into 14 into 28, right? That means the height was 7 के यूनिट में होते थे. इसकी जो हाइट 7 थी और जो इसकी लंबाई थी वो कितनी थी? 28. ठीक है. और चौड़ाई कितनी थी? 14. So this was the standard size brick of Harappan cities. So this is the structure. You can look at this picture also. एक ग्रेट बात है जो कि सिटाडल में मिला है. ये आप देखो, ये ग्रेनरी है यहाँ पर. ठीक है. तो सिटाडल वाले पार्ट में ये चीज़ें मिली है.
देन यू कैन राइट अबाउट द एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, कि कैसे वहाँ के जो शहर थे वो हर एक घर को ड्रेन से जोड़ता था, हर एक रोडवेज के नीचे ड्रेनेज सिस्टम थी। ठीक है, तो ये एक एम्फसाइज करता है कि कैसे वहाँ पर लोग जो है सैनिटेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे। राइट, वहाँ की जो रोड थी वो ग्रिड पैटर्न में थी, काफ़ी वाइड हुआ करती थी, है ना। रोड जो थी मेटल रोड्स थी। ठीक है, इसमें लोग जो है मूवमेंट करते थे। ठीक है, और ट्रेड की चीज़ें भी यहाँ से वहाँ ले जाया करते थे। तो लुक एट हियर, दिस इज द वाइड रोड। ठीक है, along the wide road there are many houses where people are living, right? So people are traveling, carrying goods, understood. And the houses were also of double story. Many of the houses are of two story. You can look at here, this is the first ground floor and this one is the first floor. Many people had well, कुएं होते थे घरों में, राइट। और जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस होते थे, कोर्टयार्ड के चारों तरफ घर हुआ करती थी, राइट। एंड दिस इज द ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस, यू कैन लुक एट हियर। एंड वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो काफ़ी एडवांस थी। ये सम्प इस तरह से बनाए जाते थे ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पर जमा हो जाए उन्हें निकाला जा सके बाद में, जैसा कि ये निकाल रहे हैं, राइट। तो लुक एट हियर, दिस इज द हाउस स्ट्रक्चर। बीच वाला जो एरिया है ये कोर्टयार्ड है, चारों तरफ कमरे हैं, राइट। दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। तो वॉल में विंडो आपको नहीं दिखेगा, बाहर की जो दीवारें हैं इसमें कहीं भी विंडो नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज द रोडवेज। सो कंक्लूजन इसका क्या होगा? The scale of construction and standardization of materials and complexity of infrastructure point towards a highly organized and unique society। तो यहाँ की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी यूनिक थी। ये कैसे पता चलता है हमें? वहाँ के कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, वहाँ के स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल से, उनकी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के पता चलता है हमें, राइट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो अगेन यू कैन लुक एट हियर, दिस इज द लोअर टाउन। लोअर टाउन में कैसे रोडवेज जो हैं बिल्कुल सीधी सीधी हैं, ग्रिड पैटर्न में। नाउ द सेम क्वेश्चन, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड like this, which was asked in the supplementary examination of 2024 under 8 marks, that is long answer. Question is, there are indication of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Substantiate the statement with suitable arguments. This question is asking कि क्या ऐसे प्रूफ्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते थे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के ये पता चलता है कि वहाँ पर कई सारे डिसीजंस कोई एक अथॉरिटी लेती थी। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या बताओगे? ये सारे, मैं इसका पूरा आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग द पॉइंट वाइज। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है? प्लांट सेटलमेंट। वहाँ की जो सिटीज़ थी वो प्लांट थी। इसमें क्या लिखेंगे आप कि सिटीज़ सिटाडल और लोअर टाउन में डिवाइडेड था, बीच में वॉल्स थी, सिटीज़ की जो सड़कें थी वो बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पे थी, राइट। तो ये प्लांट सेटलमेंट, ये तभी हो सकता है जब वहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग पावर हो, राइट। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। हर एक जगह एक जैसे वेट्स मेजर्स मिले हैं वहाँ पर, जो नापने की जो नापने के लिए जो वेट्स इस्तेमाल किए जाते थे हर जगह सेम। तो इसका मतलब है कि कोई प्लान कर रहा था, कोई इस तरह के डिसीजंस ले रहा था, हर जगह यूनिफॉर्मिटी थी, सेम रोडवेज बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में थे, ब्रिक्स के साइज़ बिल्कुल सेम थे। ब्रिक्स बनाने के लिए उसे धूप में पकाया जाता था या फिर आग में जलाया जाता था, राइट, बेक्ड किया जाता था ब्रिक्स को। कई सारे लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शंस होते थे, जैसे ग्रेट बाथ। क्या आपको लगता है ग्रेट बाथ किसी इंडिविजुअल ने बनवाया होगा? ऑब्वियसली नॉट। कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगी जिसने कि इतनी बड़ी बाथ या ग्रैनरी बनवाया, जिन्हें पता था कि यहाँ पर कभी फ्लड आ सकता है, तो सामान कहाँ स्टोर करेंगे, ग्रेन्स कहाँ स्टोर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की
वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग थी। तो ये प्लानिंग विदाउट एन अथॉरिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो स्पेशलाइज्ड था। काफ़ी सारे जो मटेरियल्स थे, स्टोन्स थे, वो दूसरी कंट्री से मंगाए जाते थे। तो इट मीन्स दैट दे वर हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ अथॉरिटी हु आर टेकिंग डिसीजंस। वहाँ की जो सील्स और स्क्रिप्ट यही सजेस्ट करती है कि जब सामान भेजा जाता था तो सील लगा के भेजे जाते थे। तो सील क्यों लगाते हैं? टू आइडेंटिफाई द सेंडर, किसी के आइडेंटिटी को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी प्रेजेंट थी, राइट। तो इसको आप एक्सप्लेन करके आंसर इसका लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क। Now another question, there is evidence that by 1800 BC most of the Harappan sites had been abandoned. Substantiate this statement in context of cause and evidence. सवाल सिंपल सा है कि 1800 BC के बाद हड़प्पन साइट्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, लोग छोड़ के जाने लगे। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, कॉज बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, और एविडेंस के साथ बताना है क्या क्या एविडेंस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ें हुई, वहाँ पर लोग वहाँ से छोड़ के गए। तो इसमें भी 4 पार्ट होगा। पहला होगा इंट्रोडक्शन, राइट। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप ये दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे लोग जो है अपने साइट्स को, अपने घर को छोड़ के जा रहे थे, इसके क्या एविडेंस हैं। फिर आपको बताना है कि क्या कॉज था, लोग क्यों छोड़ के जा रहे थे। लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। सो अगेन इंट्रोडक्शन सिंपल, सेम क्वेश्चन जो है उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। यस, एविडेंस सजेस्ट a decline and abandonment of mature Harappan sites around 1800 BC। तो पहला है। अब हम यहाँ पर मेन बॉडी में आ रहे हैं आंसर के। एविडेंस में सबसे पहला डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ठीक है। जैसे चोलिस्तान की जो साइट्स हैं, चोलिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान वाले पार्ट में। यहाँ पर देखिए, ये सारी साइट्स हमें दिखते हैं कि 1800 BC के बाद यहाँ पर बनने बंद हो गए, राइट। जितने भी मैच्योर फेज के जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड वेट थे, सील्स थी, स्पेशल बीड्स थी, ब्रिक्स, पॉटरी, ये सब धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगे। इनकी नंबर कम हो गई। पहले ज़्यादा अमाउंट में मिलते थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। या अगर मिलते भी थे तो उन पर डिज़ाइंस नहीं थे वैसे जो जैसे पहले होते थे, ठीक है। राइटिंग, मतलब जो उनकी राइटिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगी। बहुत कम ऐसे सील्स मिलने लगे 1800 BC के बाद जिस पर कि लिखा गया हो। ट्रेड के भी सिंबल्स हमें मिल रहे हैं जो डिक्लाइन हो रहा है, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड भी कम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, एविडेंस हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि 1800 BC के बाद हड़प्पन साइट को लोग छोड़ रहे थे या धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। तो लुक एट हियर, ये हैं हम मेच्योर हड़प्पन साइट्स के पोट्री, देखो, है ना। और ये हैं लेट हड़प्पन साइट्स के, मतलब 1800 BC के बाद धीरे धीरे इस तरह के डिज़ाइंस बनने लगे। तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा दोनों में, है ना। तो मैच्योर में काफ़ी इनरिच्ड था, और लेट में क्या हो गया, लेट हड़प्पन साइट्स में ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, राइट। इसके बाद जो वहाँ के कंस्ट्रक्शंस थे, जैसे घर बनाने के टेक्निक थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। लार्ज बिल्डिंग बननी बंद हो गई, बड़े बड़े ग्रेनरी जो थे वो बनने बंद हो गए। जैसे मध्य प्रदेश उज्जैन में पाथिया नाम का एक जगह मिला है जहाँ पर कि हड़प्पन से रहते थे, लेकिन उनका घर किसका बना था? मड का बना हुआ है, राइट, मिट्टी का बनाया है, ब्रिक्स से नहीं बनाया। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, राइट। शिफ्ट इन सेटलमेंट्स, लोग शिफ्ट कर रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग में जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं वहाँ पर ये सारे साइट्स जो हैं काफ़ी मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, राइट। लेकिन बाद में 1800 BC के बाद कई सारी साइट्स आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर। ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, राखी गढ़ी, बनाबली, है ना, फरमाना, ये कहाँ है? आज के हरियाणा के आसपास वाले रीजन में है। तो अब लोग यहाँ से उठ के किधर आ रहे हैं? इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। 1800 BC के बाद क्यों आ रहे हैं? या तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, फ्लड आ गई, या फिर यहाँ पर किसी तरह का ड्रॉट आ गया जिसकी वजह से लोग यहाँ से छोड़ के यहाँ आके शिफ्ट हो रहे हैं,
तो देखो यहाँ पर कितनी सारी साइट्स आपको दिखने को मिलेगी, राइट। तो लोग जो इंडस प्लेन है उसको छोड़ के गंगा प्लेन में आ रहे हैं। तो ये भी एक सजेस्ट करता है कि कैसे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपनी जगह को छोड़ के नए जगह पर आ रही है, ठीक है। उनकी जो मटेरियल कल्चर थी वो भी चेंज हो रही थी, जैसे जो उनके जो क्राफ्ट थे, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह सब कुछ बदल रहे थे। तो ऐसे टाइम को हम कहते हैं लेट हड़प्पन। क्या कहते हैं? वी कॉल इट लेट हड़प्पन, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिखेंगे। अब हम आएंगे हमारे आंसर के तीसरे पार्ट पे कि क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है। तो पहला पॉसिबल कॉज हो सकता है क्लाइमेट चेंज, राइट। कि बारिश नहीं हो रही थी, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो गई, ठीक है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन हो सकता है एक रीज़न, कि लोगों ने पेड़ काफ़ी सारे काट दिए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, राइट। और वहाँ पर अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक इम्पैक्ट देखने को मिले और लोग ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए, ठीक है। फ्लडिंग एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर फ्लड आ गए, क्योंकि काफ़ी सारे रिवर्स हैं यहाँ पर, तो फ्लड तो आ ही सकता है। तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी वजह से वहाँ की जो रिवर्स हैं उनका पानी सूख गया। अब जैसे एक एविडेंस भी मिलता है हमारे पास, एक घग्गर रिवर है जो कि इंडिया में घग्गर के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है। ये रिवर की जो बेड है वो ड्राइड है, ठीक है। ये सीजनल नेचर की रिवर है, यहाँ की पानी सूख गई। अभी इस घग्गर रिवर के किनारे काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हैं, ठीक है, जो अबेंडेंड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो पानी है वो सूख गई, जिसकी वजह से लोग यहाँ से मूव कर गए पानी की कमी के कारण, ठीक है। और एक कारण हो सकता है ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, कि वहाँ की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया, ग्रेजिंग कराया एनिमल्स से, जिसकी वजह से लोगों को ग्रेन्स प्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया ड्यू टू अनफर्टिलिटी। तो लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, इट इज़ लाइकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। अब देखो ये सारे फैक्टर्स जितने हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से हड़प्पन साइट अबेंडन हुई, ज़रूरी नहीं कि एक सिटीज़ में सभी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि हड़प्पा में फ्लड की वजह से वहाँ से लोग हट गए, कालीबंगन में सुखाड़ की वजह से, ड्रॉट की वजह से हट गए। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग रीजन में कंट्रीब्यूट किया ग्रेजुअल डिक्लाइन के लिए, राइट। तो अर्बन फेज धीरे धीरे 1800 BC के बाद ये ख़त्म हो गया, ये कंक्लूजन में आप लिखेंगे। तो दिस विल बी द आंसर, एंड आई होप दिस 2 to 3 क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड and remember it. So thank you for today. We will meet in the next lecture, right?